why somebody would need like a solar system? Solar, wind, hydro is very very important. फॉसिल फ्यूल एक तो वैसे ही डिप्लीट हो रहे हैं, प्लस हमारे तो और भी चैलेंजेस हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड चैलेंजेस हैं, और आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है. तो आई थिंक द बेस्ट वे फॉर पाकिस्तान एंड फॉर दैट मैटर एनी country where lot of sun is available to meet energy requirements is basically wind or solar renewables. सोलर पैनल पे अभी ड्यूटी नहीं है, सोलर पैनल पे GST भी नहीं है, जनरल सेल्स टैक्स. अगर आप इंपोर्ट भी कर रहे हैं, अभी आप इंपोर्ट भी कर रहे हैं as of today, as assembled, yes. Okay. Objective is to solve Pakistan's energy crisis and also build a world-class product for other parts of the world as well. We can, based on community, we can participate and fulfill each other's energy needs. Amin Sukhera साहब, CEO of SkyElectric. SkyElectric, it's a solar company जहाँ तक मुझे पता है, and बहुत ज़बरदस्त किस्म के सोलर बनाती है. और जिस तरह आप बता रहे थे, आजकल तो AI भी इंटीग्रेट कर रहे हैं और आप जो हैं वर्चुअल और इंटरनेट पे सारी चीज़ों को ला रहे हैं. बट बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ कि आप स्काई इलेक्ट्रिक में क्या कर रहे हैं, सोलर इंडस्ट्री में क्या कर रहे हैं, just like a brief background for the people who don't know you, like if you can tell about like briefly about yourself, क्या करते आ रहे थे और all of a sudden आप किस तरह लैंड किए हैं स्काई इलेक्ट्रिक में और स्काई इलेक्ट्रिक के CEO आप बन गए हैं आजकल और बड़ी जिम्मेदारियां हैं आप पर. Nadeem sir, thanks for inviting to your podcast. Pleasure sir. मेरा background computer science का है, worked in US for 15-16 years, then came back and started SkyElectric. SkyElectric is a startup started by Ashar Aziz, who is a founder and chairman of the company. He's already started 3-4 companies. सबसे जो उनका एक famous startup थी, that was FireEye. I was also part of that journey. SkyElectric started in late 2014, early 15. Basically, Ashar का जो vision था, that was building microgrids. It's a SkyElectric is a technology company, and we happen to be in solar space. That's why people call us a solar company. Yes, we are building next generation intelligent solar products, but for all practical purposes, we are a technology company. अभी हमारे operations those are let's say 15 में start हुई, and our first product was launched in 2017 in Pakistan. Abhi now we have close to 10,000 customers. We are mostly doing residential, but we very selectively do commercial as well as industrial systems as well. So as I said, हमारे 10,000 plus system हो चुके हैं पाकिस्तान में, जिनमें कोई almost 90+% are residential systems. फिर हमारे बड़े client भी हैं, जैसे Pepsi है and Feroz Sons है, just to name a few. GIK है is also our customer. GIK University जो है, GIK University. जी. And there are a lot of commercial customers as well, industrial customers as well. Inshallah, next year we will be launching our this solar product in Japan as well. And 2025 में हमारा plan है कि we'll be launching this product in California and Hawaii in the US as well. And we are working. We have a beta product running in Japan. जापान की सर्टिफिकेशन टेक्स लिटिल बिट लॉन्गर, तो आजकल सर्टिफिकेशन हमारी चल रही हैं. स्काई इलेक्ट्रिक में जो हमने किया है, सो बेसिकली वो सोलर के साथ साइबर सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर, AI, ML को इंटीग्रेट करके वी आर ट्राइंग टू क्रिएट ए इंटेलिजेंट सोलर सोल्यूशन विच वी कॉल माइक्रो ग्रिड. जैसे हर घर पे जो एक सोलर सिस्टम लगता है, एक्चुअली तो आप एक ग्रिड लगा रहे हैं वहाँ पे, माइक्रो ग्रिड हम उसको कहते हैं. आप उसको सॉफ्टवेयर इंटेलिजेंस के थ्रू वी आर मेकिंग इट एज ए स्मार्ट ग्रिड. And the vision is when you are going to have these millions of microgrids which are connected through the internet,
then you can, based on different people's load profile, everybody can start feeding to other locations where, more energy is required. If you are traveling, you have a SkyElectric system, and the system automatically learns that your load is going to be very less, and I have some guests at my home, and my load is going up. So the system intelligently can, when it's it's a millions of distributed microgrids, can learn and try to feed to different customers. So stepping back a little bit, just क्योंकि आपके वो काफ़ी सारे I'm sure viewers होंगे जिनको solar system का मैं idea. So solar system जैसे आपको पता है एक solar panels होते हैं, and then इसमें inverter है, और फिर optionally आप इसमें battery लगाते हैं, and then you do reverse metering as well, जिसको net metering भी कहते हैं, reverse metering भी कहते हैं. वो आप जिस भी डिस्को वाले एरिया में है उसके थ्रू आप यू कैन डू योर रिवर्स मीटरिंग, जो आपकी एक्सेस एनर्जी है. सो व्हाट द सोलर सिस्टम डज इज इट फ्रॉम सन इट कन्वर्ट्स इनटू एनर्जी, एंड whatever needs to be utilized at your place will be used, and if you have storage it will be stored in the battery, and the excess energy will be sent back to the grid, जिस grid से भी आप connected है. So that's very very high level idea of solar system. हमारा जो स्काई इलेक्ट्रिक है वो प्रेजेंस, नेशनल प्रेजेंस कराची में हमारा ऑफिस है, लाहौर में है, इस्लामाबाद में है. क्लोज टू 100 people in कराची, almost 100 in लाहौर, and 250 to 260 people in इस्लामाबाद. हमारे R&D टीम में है क्लोज टू 60 people. हमारे जो CTO हैं डॉक्टर फ़र्रुख कामरान, वो जॉर्जिया टेक से उन्होंने PhD पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में की हुई है, वो कंपनी के साथ फ्रॉम डे वन है. Then we have 5 or 6 PhDs. We hired recently, close to 6 months or so, a guy from Tesla, US company, जो Tesla का solar division run कर रहे थे उधर. Dr. Umar, he happens to be a expat Pakistani as well. तो वो हमारी कंपनी में हमारी इंजीनियरिंग को वो अभी रन कर रहे हैं, जो power engineering. He has come back to the country right now? He has come back to Pakistan. Okay. He wanted to, come back, and plus we were looking for good talent. We are always looking for good talent. और आपके शो से अगर there are other Pakistani, especially in power industry or software industry, and they want to come back, we definitely can create a role for them as well. So वो 60 लोगों की हमारी R&D टीम है. हम जो कर रहे हैं वो सॉफ्टवेयर को, जैसे मैंने पहले भी कहा, सॉफ्टवेयर को इंटीग्रेट कर रहे हैं सोलर के साथ फॉर बेटर विजिबिलिटी फॉर द कस्टमर. हमारी जो ऐप है, एवरी सिस्टम इज़ कनेक्टेड टू द क्लाउड, एवरी सिस्टम इज़ being remotely monitored by trained professionals 24/7. We have a NOC Network Operation Center, जिसमें इस वक्त कोई 150 से ज़्यादा लोग डिफरेंट शिफ्ट्स में काम कर रहे होते हैं. उसमें some team is just listening the phones. If customer calls, we have a 0800 number. We are the only company जहाँ पे you can call 24/7, and some human is going to answer the phone and listen to you and talk to you about your discuss your issue जो भी आपका है, और उसी के accordingly they are going to dispatch the team. Plus the way we have built this thing, every system अपना alerts भेजता है if there's anything goes wrong with the system. वो नॉक की स्क्रीन पे आ जाता है, तो नॉक आल्सो प्रोएक्टिवली कॉल्स द कस्टमर के सर आपके सिस्टम पे ये इशू आ गया है, वी आर अवेयर ऑफ इट. और अगर वो सिस्टम रिमोटली रेक्टिफाई हो सकता है वाया सॉफ्टवेयर अपग्रेड और वाया सम रिमोट कमांड, वो उसको उधर ही रिमोटली रेक्टिफाई करते हैं. But if we need to dispatch somebody on ground, we send somebody to take care of the system. अच्छा, आपका जो मेजरली एक्सपीरियंस रहा, बिकॉज यू मेंशन कि आप 13-14 साल जो है US में थे और आप फिर पाकिस्तान आए, और अशर अजीज़ साहब जो कि कंपनी के चेयरमैन भी हैं, फाउंडिंग मेंबर भी हैं, बल्कि फाउंडर हैं, उन्होंने भी ज़्यादातर जो प्रोजेक्ट्स या कंपनीज रन की वो साइबर सिक्योरिटी स्पेस में और US में रन करी. व्हाट वाज लाइक द मोटिवेशन कि ऑल ऑफ अ सडन व्हेन यू आर रनिंग लाइक दीज सक्सेसफुल कंपनीज, और जिसका आपने पहले जिक्र भी किया कि IPO हुआ एंड इट वाज अ $1 billion वैल्यूएशन कंपनी, व्हाट मोटिवेटेड यू टू ऑल ऑफ अ सडन two things happen? You shifted from
cyber security to solar and from US to Pakistan? Like, why would you do that when you already have $1 billion company? Rather than expand or start a new company in the US, you shifted your domain, you shifted your country as well. What happened there? So पहली बात तो ये है कि Ashar, who is a MIT and Berkeley graduate, MIT से EECS किया, फिर Berkeley से computer science में master किया. He always loves to solve complicated challenges, problems. उनकी जो पहली startup थी, that was in cloud virtualization, very similar to what we have AWS, which was acquired by Sun. And the second startup was in cybersecurity, a very, very different idea in cybersecurity, FireEye. So then I think he figured out, so Pakistan wala connection was always there. जब उसने अपनी पहली company start की, we had a backend office in Pakistan, Terraspring के लिए. When he started FireEye, we had a backend office here in Lahore, where we, at one point, we had close to 150 people, working for FireEye, doing research. उनमें से जो brilliant बच्चे थे, उनको हम US में भी लेके चले गए, और वो, now some of those kids have their own startups in the US. So Pakistan connection was always there. So now this Pakistan ki grid and overall energy transformation, grid transformation is going through a very structural disruptive changes, so to speak. अगर ग्रिड की आप हिस्ट्री देखें तो अर्ली 19th सेंचुरी में 1882 टू बी प्रिसाइज, जब पहली ग्रिड स्टार्ट हुई, इट वाज अ वेरी स्मॉल ग्रिड, डिस्ट्रीब्यूटेड, छोटे छोटे पार्ट्स बने हुए थे, और इट वाज अ डीसी बेस्ड सिस्टम. फिर उसके बाद वो जब जनरेशन बड़े स्केल पे होना शुरू हुई, तो उसके TND ट्रांसमिशन लाइन, और फ्रॉम DC टू इट कन्वर्टेड टू AC, तो उसके बाद इट कन्वर्टेड टू नेशनल ग्रिड्स व्हाट वी हैव. अभी जिस साइड पे एनर्जी का ट्रेंड चल रहा है, वो इट इज़ गोइंग टूवर्ड्स DERs, डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज. उसमें जनरली विंड एंड सोलर है, बट हैवीली सोलर. एक जो 5 मरले का घर है, जिसमें एक आध AC, 5-6 लाइट्स और 2-4 फैंस, एक आध फ्रिज, उस पर इतनी सोलर एनर्जी अवेलेबल है. इफ़ यू कैप्चर इट इंटेलिजेंटली, यूज़ इट इंटेलिजेंटली, स्टोर इट इंटेलिजेंटली, दैट होम कैन बी सेल्फ सफिशिएंट. 2 चीज़ें हो रही हैं. एक तो आपके सोलर इक्विपमेंट की एफिशिएंसी बेहतर हो रही है ओवर टाइम, ठीक है. बैटरी पहले लेड एसिड बैटरी थी, फिर लिथियम आयन बैटरी आ गई है. सेकंड, दूसरी साइड से ये हो रहा है कि व्हेन वी वर स्टडीइंग इन आवर चाइल्डहुड, एक 100 वाट का बल्ब एक पूरे कमरे को रोशन करता था. तो अभी 2-2 वाट की LED लाइट्स आ गई हैं. आप वो एक घर के लिए यू जस्ट सो optimize, use the energy efficient appliances, devices, everything is getting energy efficient, right? So उस वजह से अब सोलर इतना एक जैसे, और सिमिलरली एक कनाल के घर के ऊपर आप यू हैव इनफ रूफ स्पेस एंड सोलर, स्पेशली इन पाकिस्तान लाइक एरियाज वेयर सन इज इन द अबंडेंस माशाल्लाह. आप इतनी एनर्जी आ रही है कि आप उसको इंटेलिजेंटली हार्नेस करके यू कैन रन योर होम सॉर्ट ऑफ इंडिपेंडेंटली और विद ज़ीरो बिल. if you are using it efficiently as well. अगर आपके devices, आपकी lights, आपके fans, आपके fridges, आपके ACs, they're also energy efficient. तो I think वो इस area में, so this is the next cyber security kind of big challenge which needs to be solved. So Pakistan we selected. First we wanted to try something out here because here the grid is very fragile. Grid के issues भी बहुत ज़्यादा हैं. Grid rates are going skyrocketing every day, as you can see the trend. लेकिन this SkyElectric is a US based company. जैसे मैंने पहले भी कहा, हम इंशाल्लाह जापान भी जा रहे हैं 2024 में, 2025 में कैलिफोर्निया, हवाई, US, and we are considering few other countries as well. So it's a global. Ashar is building a global company to be a leader in the renewable energy space. Right now पाकिस्तान में जब लोग सोलर की बात करते हैं तो एक चीज़ जो जहन में आती है कि सोलर सबसे पहले क्यों लगाएं. नंबर 1,
यार लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, सही है। फौरी लोगों का दिमाग जाता है कि यार अगर बिजली जा रही है और पाकिस्तान जैसे मुल्क में ऑलरेडी सूरज जो है काफ़ी साल के काफ़ी अरसे रहता है और तकरीबन रोज़ाना ही रहता है, तो यू हैव दिस कैपेसिटी टू बी सेल्फ सफिशेंट, ख़ुद आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें। और दूसरा ये कि अगर आपकी आईएसको, आपका के इलेक्ट्रिक, आपका पेस्को वगैरह जो है, अगर लोड शेडिंग ज़्यादा हो रही है और आपको जनरेटर लगाने पड़ने हैं तो दैट आर कॉस्टली सोल्यूशन बिकॉज पेट्रोल महंगा हो रहा है। नंबर वन, जो आपके पाकिस्तान में आने की वजह थी, वाज दिस लाइक द मेन थिंग, लोड शेडिंग की वजह से आप आए थे, या यू कुड फील कि देयर इज मच मोर टू दैट? राइट, वो जैसे मैंने कहा कि हमारा बैकएंड ऑफिस, डेवलपमेंट ऑफिस ऑलवेज इवन फॉर प्रीवियस कंपनीज वर इन पाकिस्तान। तो डेवलपमेंट ऑफिस हमने इधर से स्टार्ट किया। हमने जो प्रोडक्ट की डेवलपमेंट शुरू हुई 2014-15 में, डॉक्टर फ़ारूक और उनकी टीम, जो पावर की टीम थी, एंड प्लस सॉफ्टवेयर की टीम, सो वी स्टार्टेड डेवलपिंग द प्रोडक्ट हेयर। And after that, we decided. And sorry to cut you, back in 2015 and 16, जब आपके बड़े early days थे of the company, right? तो जो solution आप यहाँ पर लेकर आ रहे थे, that were implemented somewhere else as well, या were they completely newly researched and according to the context of Pakistan? So it was absolutely a brand new concept. And it was initially, it was the solution, the solution was very much general, but the initial implementation were more directed towards Pakistan. Although, again, as I said, the framework we built, it was for global framework, global product, because the plan was to build a global product which can be deployed in Pakistan, can be deployed in Japan, rest of the world as well. इम्प्लीमेंटेशन हमने स्टार्ट की पाकिस्तान के लिए। लेट मी आस्क यू अ सिली क्वेश्चन, बिकॉज आपका जो कॉन्टेक्स्ट है वो ग्लोबल है। पाकिस्तान में तो थोड़ा सा इट्स इजी टू अंडरस्टैंड कि लोड शेडिंग है, एनर्जी प्राइसेस ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से आप चाह रहे हैं कि आपका शिफ्ट जो है सोलर पे हो जाए। व्हाट अबाउट टू जापान? जापान इज़ अ वेरी डेवलप्ड कंट्री, जो आप वहाँ पर जा रहे हैं, देन यू हैव मेंशन कि कैलिफोर्निया एंड हवावे, राइट? वहाँ पर आई फील लाइक why somebody would need like a solar system? So the world is going away from fossil fuels to renewable energy. That applies to your home energy, and that applies to your electric vehicles as well. Think of a time when let's say you will be running your house completely on renewable energy. You will have an electric vehicle, one or two, whatever you have, and you will have motorbikes, for example. Those are also going to e-bikes. So everything will be running on renewable energy, and we will be going away from fossil fuels. So that thing is there. That thing is going to happen. And in fact, पाकिस्तान में तो हम काफ़ी पीछे हैं। बाकी यूरोप और यूएस वालों ने तो टारगेट्स रखे हुए हैं डिफरेंट कि 2030 तक हमने ये करना है, 2040 तक हमने ये करना है, 2050 तक हमने कंप्लीट फॉर एग्जांपल स्विच कर जाना है टू ईवीज एंड टू रिन्यूएबल एंड ऑल दैट। अब जब आपकी पाकिस्तान में तो ईवीज में भी यू कैन काउंट इन थाउजेंड्स, राइट? अभी तो ये वो ईवी वाली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू ही नहीं हुई है। जब वो ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होगी, पूरी इंडस्ट्रीज शिफ्टिंग टूवर्ड दैट, तो आपके पास हमारे लिए तो ख़ास तौर पे सोलर विंड हाइड्रल इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। फॉसिल फ्यूल्स एक तो वैसे डिप्लीट हो रहे हैं, प्लस हमारे तो और भी चैलेंजेस हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड चैलेंजेस हैं, और आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। So I think the best way for Pakistan, and for that matter any country where a lot of sun is available, to meet energy requirements is basically wind or solar, renewables की आपने बात की, तो अगर मैं आपसे पूछूं ग्रीन हाउस गैस इमिशंस और कार्बन फुटप्रिंट जो है सोलर पैनल्स का या इससे रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट यूज़ होता है, what is like the carbon footprint of solar energy? Like आप अपने एक माइक्रो ग्रिड लगा लिया अपने ऊपर, और इसी तरह जब हज़ारों लगेंगे तो ये एक नेटवर्क लगेगा ऑफ अ माइक्रो ग्रिड। तो is there like any carbon footprint there, या how much have you reduced comparatively to the traditional energy sources like fossil fuels की अगर आप बात करें, how much it can be reduced with solar? Basically it's a completely clean energy. इसमें तो जब आपके घर पे कोई सोलर सिस्टम लगा हुआ होता है, there is nothing burning, nothing running, right? It's like harnessing the
sun's solar to converting it to energy and giving your house or maybe charging your electric vehicle also. It's completely clean. There's no carbon emission or anything involved in this. Yes, when you manufacture all these solar panels and all that, well, that's a separate debate maybe. But as far as the running of the solar system is concerned, there's no carbon emissions or anything. And I feel like it's completely clean. अगर वो इक्विपमेंट प्रोड्यूस करने में भी ये भी कार्बन फुटप्रिंट है, बट दिस इज बिगिनिंग ऑफ द न्यू एरा विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद मोर इनोवेशन, विद मोर R&D बीइंग डन. ये जो इसके मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है, दैट विल आल्सो बी फाइन ट्यून, इनोवेटेड, and maybe will be converted to renewable energy as well. Yes. The renewable products are being produced using renewable energy, and I think that's what China is doing. They have installed 330 gigawatts of solar. China. crazy. Yes. I think, if I'm not mistaken, I think equal to 1/3 of the world. Is the government supportive of the solar energy systems right now? पिछले साल मैं सुन रहा था कि उन्होंने टैक्स इम्पोज किए हैं. आई डोंट नो अबाउट दिस न्यू बजट वेदर इसमें है या नहीं. इज़ लाइक आवर बजट्स और टैरिफ्स और जो, क्योंकि ज़्यादातर ये जो है सोलर जितने सिस्टम है, इनका जितना इक्विपमेंट है वो पाकिस्तान में नहीं बनना, दैट इज़ बीइंग इम्पोर्टेड, राइट? बट इज़ देयर लाइक एनी रिलैक्सेशन? बिकॉज अगर वहाँ पर टैक्सेस होंगे, वहाँ पर टैरिफ्स आएंगे, दैट इज़ अगेन रिफ्लेक्टेड टू द कस्टमर, और उसकी परचेजिंग पावर के हिसाब से शायद वो 2-3 मरतबा सोचे कि यार शायद मुझे इसमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, बिकॉज द अपफ्रंट कॉस्ट इज सो हाई, राइट? फॉर एग्जांपल, अगर किसी के कनाल का घर है तो अगर उसको 20 किलोवाट सिस्टम लगाना है तो दैट वुड गिव और टेक कॉस्ट हिम लाइक 5 million rupees इन द करंट इकोनॉमिक सिचुएशन. तो are you like, what would you say, like right now the government tariffs, the government taxes are like justified कि एक नॉर्मल बंदा भी अफोर्ड कर सके ये सोलर सिस्टम? सो ये बड़ा अच्छा सवाल है, स्पेशली ये बजट के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि काफ़ी सारे हमारे कस्टमर भी ये सवाल पूछ रहे हैं. गवर्नमेंट जनरली स्पीकिंग इज़ प्रिटी सोलर एनर्जी फ्रेंडली. इनके काफ़ी इन्होंने एनर्जी टास्क फोर्स भी बनाई थी गवर्नमेंट ने, इसमें स्काई इलेक्ट्रिक प्राइवेट companies में से one of the company which was participating to help the task force come up with solar policy and proposal. अभी जो करंट सिचुएशन है, इस बजट में गवर्नमेंट ने अनाउंस देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी ड्यूटी ऑन रॉ मटेरियल और मशीनरी टू मैन्युफैक्चर सोलर पैनल्स या सोलर इन्वर्टर्स या लिथियम आयन बैटरीज. एक्चुअल असेंबल्ड इन्वर्टर, असेंबल्ड पैनल्स और असेंबल्ड बैटरीज पे उन्होंने देयर इज नो चेंज. सो जो सोलर सिस्टम्स हैं उन पे कोई चेंज नहीं है, लेकिन अगर आप रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हैं टू मैन्युफैक्चर सोलर कंपोनेंट लाइक पैनल्स फॉर एग्जांपल, उस पे उन्होंने ड्यूटी ख़त्म की है. लेकिन सोलर पैनल पे अभी ड्यूटी नहीं है. सोलर पैनल पे GST भी नहीं है, जनरल सेल्स टैक्स. अगर आप इंपोर्ट भी कर रहे हैं, अभी आप इंपोर्ट भी कर रहे हैं एज ऑफ टुडे एज असेंबल्ड. यस. ओके. इन्वर्टर के ऊपर there is no duty, but there is a 20% GST sales tax port के ऊपर है on arrival. Did they introduce it this tax year? मतलब 2023-24 में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया या पिछले साल भी था? ये मेरा ख्याल में 2021 में आया था शायद. उस वक्त सोलर पैनल पे भी आ गया था GST, इन्वर्टर पे भी और बैटरी पे भी. सिमिलरली बैटरी पे भी है. जब ये गवर्नमेंट आई है तो इन्होंने सोलर पैनल से GST हटा दिया, बाकी बैटरी और इन्वर्टर के ऊपर अभी भी GST लगा हुआ है. यू मेंशन के रॉ मटेरियल्स जो कि सोलर सिस्टम के मैन्युफैक्चरिंग वो प्रमोट करना इंडस्ट्री प्रमोट करना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में लोकली सोलर पैनल मैन्युफैक्चर हो, लोकली इन्वर्टर मैन्युफैक्चर हो, बैटरीज मैन्युफैक्चर हो, विच आई मे और मे नॉट एग्री, बट ठीक है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में मेरे ख्याल में, एंड आई मे बी रॉन्ग, दैट्स माय पर्सनल ओपिनियन, चाइना हैज गॉन क्वालिटी वाइज, कॉस्ट वाइज गॉन वे अहेड, राइट? और उसने जर्मनी जैसे जो एडवांस मुल्क थे जो पहले सोलर पैनल मैन्युफैक्चर कर रहे थे, दे हैव स्टॉप्ड मैन्युफैक्चरिंग सोलर पैनल्स बिकॉज दे कैन नॉट बीट द एफिशिएंसी, द प्रिसीजन एंड द कॉस्टिंग ऑफ चाइना. बट अगर आप देखें अभी चाइना में भी जो लेबर कॉस्ट है दैट हैव इंक्रीज्ड,
लेबर, वहाँ का स्किल लेबर इट्स नॉट वो पहले वाला लेबर नहीं रहा, दैट इज़ एक्सपेंसिव. डू यू फील लाइक कि पाकिस्तान में विद द पैसेज ऑफ टाइम या अभी करंटली जो रॉ मटेरियल्स की इंपोर्ट पर इन्होंने टैक्स का वेवर दिया है, तो लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट, पाकिस्तानी इंडस्ट्रियलिस्ट या फॉर दैट मैटर चाइनीज़ इंडस्ट्रियलिस्ट जो कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, या ओवरसीज़ इन्वेस्टर जो कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहा है, कोई इससे फ़ायदा उठा रहा है कि दे कैन सी अ पोटेंशियल कि यार अगर स्काई इलेक्ट्रिक जैसी बड़ी कंपनी और बेतहाशा और सोलर एनर्जी की कंपनीज ऑपरेट करी एंड देयर इज़ अ डिमांड फॉर द प्रोडक्ट्स ऑफ सोलर, राइट, व्हाई नॉट मैन्युफैक्चरिंग फॉर कॉस्ट इफेक्टिव प्राइसेस इन पाकिस्तान, प्रोवाइडेड अगर यहाँ पे उस तरह का स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स हो. I meet a lot of people who are considering this option to manufacture panels here. But I think एक चीज़ हमें ज़हन में रखनी चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग असेंबली there is a full ecosystem. There is a full so हमारे वो ecosystem does not exist, right? So मेरे ख्याल में again, and you know that's why I can be wrong as well, happy to be wrong. जैसे हमने ये गाड़ियों वाले बिजनेस में किया है, हमने मैन्युफैक्चरिंग जब यहाँ से शुरू की, तो अभी भी हमारे मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट्स बाहर से आ रहे हैं, इधर हम लोकल असेंबली कर रहे हैं ना, उनकी क्वालिटी मैच कर रही है. अब यू नो Corolla फॉर एग्जांपल, आप एक इंपोर्ट की Corolla भी चला लें और एक लोकल Corolla, आई एम श्योर देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस. आई थिंक देयर इज अ डिफरेंस. सो दैट्स वन. प्राइस वाइज अब मेरे ख्याल में ड्यूटी के बावजूद जो आपने बाहर से Corolla गाड़ी इंपोर्ट की है वर्सेस जो आप इधर लोकली ले रहे हैं, तो प्राइस वाइज में भी कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है. इसी तरह सोलर पैनल के लिए उसके पीछे गोल तो ये है ना कि हम फॉरेन एक्सचेंज सेव करें, राइट, दैट्स द गोल. बट जब उसके सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स आप बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, राइट, उसकी मशीनरी आप बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो आई डोंट नो, यू विल बी सेइंग 15-20% फॉरेन एक्सचेंज बाय मैन्युफैक्चरिंग लोकली, एंड यू मे नॉट. तो उसमें चैलेंज फिर ये आता है कि क्वालिटी आपने वो वाली मेंटेन करनी है. इफ़ द इकोसिस्टम डज नॉट एग्जिस्ट हियर, राइट, तो क्वालिटी आप कैसे मेंटेन करेंगे? यू नो एग्जांपल्स अगेन कार्स. The other thing is you need to make this is evolving so rapidly. The solar panel manufacturing, these inverters, all these things are evolving very very rapidly. और ये वन टाइम चीज़ नहीं, आपने एक दफ़ा लगा दी तो बस ये फॉर द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ चलती रहेगी. बट नॉर्मली कुछ लाइफ तो इसकी होगी ना कि फॉर एग्जांपल कंटिन्यूस इनोवेशन चल रही, कंटिन्यूस. फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे एक सिस्टम आज लगाता हूँ तो जाहिर बात है अगर उसकी कॉस्ट 20 किलोवाट की फॉर एग्जांपल जो है वो 50 लाख है, राइट, तो उसकी लाइफ कितनी होगी? इज इट लाइक 10 years 15 years? जाहिर बात है आप अपने नॉक डिपार्टमेंट से आपका तो लग गया ना, आपका तो लग गया. अब देखें नेक्स्ट सोलर पैनल हो सकता है सोलर टाइल्स आ जाए, ऐसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ. हो सकता है सोलर विंडोज आ जाए, या तो हम इनोवेशन करके कोई एक नई चीज़ लेके आए कि ठीक ये भी एनर्जी पैदा करते हैं, लेकिन आपकी वो छत पे ऊपर जो आप एलिवेटेड स्ट्रक्चर या स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर लगाया हुआ है उसकी बजाय आपने जो खिड़कियां लगानी है वो शीशे की लगा लें, आपके घर के लिए एनर्जी काफ़ी होगी. या तो इस तरह इनोवेशन आ रही है, नई प्रोडक्ट आ रही है, तो उसमें बट करंट सिनेरियो में रहते हुए जो आपके ट्रेडिशनल जो है वो, इफ वी आर ट्राइंग टू कॉपी कैट and we are think that we will say foreign exchange, I may not agree to that. That's the point I'm making. If we can innovate some solution which rest of the world doesn't have, and we think not only we can use locally, it's going to have lot of other benefits. जैसे मैंने ये खिड़कियों वाली एग्जांपल दी है, अब जो बड़ी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं उन पे तो सोलर फिजिबल अभी नहीं हुआ ना, अनलेस कि आप उनकी वो साइडों पे जो भी खिड़कियाँ वगैरह हैं वो किसी तरीके से गॉट योर आंसर, सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करना शुरू कर दें. बट माय क्वेश्चन इज, आप जो अभी जो आपके पास टॉप ऑफ द लाइन जो आपके पास बैटरी है, जो आपके पास सोलर का इन्वर्टर है, प्लस जो पैनल्स हैं, इसकी कितनी लाइफ है? फॉर एग्जांपल आपने लगा के दे दिया किसी भी कस्टमर को लाइक 10 years 20 years 30 years 50 years 99 years, व्हाट इज द लाइफ? अगर आप उसको मेंटेन करो, बिकॉज मेंटेनेंस भी आप ही की कंपनी करेगी, राइट, आपका बाकायदा एक एनओसी डिपार्टमेंट है जहाँ से वो कोई इशू देखते हैं, वहीं से अगर वो ट्रबल शूट कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं, वो करेंगे. अदरवाइज वो किसी नुमाइंदों को भेज देंगे टू फिक्स द सोल्यूशन, टू फिक्स द प्रॉब्लम, राइट, इन द सिस्टम. तो if I were to ask you कि मेंटेनेंस अच्छी चल रही है and somebody is like putting in like 50 लाख रुपए या 30 लाख रुपए या 10 लाख रुपए for that matter, depend the size of their house and their requirement, what's the life of this whole solar system including the batteries, including the inverter and the panels?
पैनल की वारंटी इज जनरली 25 से 30 साल है, और परफॉर्मेंस वारंटी, वर्कमैनशिप वारंटीज 12 ईयर्स 15 ईयर्स, डिफरेंट। वर्कमैनशिप ये है कि वो जो उनकी असेंबली वगैरह हुई है, तो नथिंग इज गोइंग टू हैपन। परफॉर्मेंस वारंटी ये है कि दे आर गोइंग टू वर्क फॉर एटलीस्ट 25 to 30, दे विल बी प्रोड्यूसिंग एनर्जी एवरी ईयर, थोड़ी बहुत कोई 0.5% प्लस माइनस डिग्रेडेशन होगी, परफॉर्मेंस डिग्रेड होती है, बट वो दे विल बी वर्किंग फॉर द नेक्स्ट 25 to 30 ईयर्स, दैट्स द वारंटी। अब वारंटी का मतलब ये नहीं है कि ये उस वारंटी पीरियड के बाद बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। जैसे हमारे फ़ोन की वारंटी 1 साल की है, उसके बाद ये तो नहीं ना कि काम करना ख़त्म हो जाते हैं। तो मे बी 30-40 ईयर दे आर गोइंग टू कीप परफॉर्मिंग। इसी तरह इन्वर्टर की जो आजकल इन्वर्टर्स आ रहे हैं, स्टैंडर्ड उनकी 5 साल की वारंटी है, एक्सटेंडेड 10 साल की भी है, उससे भी ज़्यादा एक्सटेंडेड कुछ केसेस में अगर आप लेना चाहें तो मिल सकती है। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बैटरी के लिए आ रही है, लिथियम आयन बैटरी, हमने अभी TDK के साथ जॉइंट वेंचर करके एक बैटरी बनाई है, वो हमने अभी पाकिस्तान में लॉन्च की है जस्ट मंथ और सो बैक। उसकी हम 10 साल की वारंटी दे रहे हैं, उसकी प्रैक्टिकल लाइफ इज़ 17-18 ईयर्स, और उसमें असम्पशन ये है कि लेट से आपकी 6-8 घंटे ग्रिड जा रही है, क्योंकि बैटरी में एक नंबर ऑफ साइकिल्स होते हैं ना, तो जितने आप साइकिल यूज़ कर रहे हैं, अगर आपकी 24 आवर ग्रिड नहीं है तो यू आर यूजिंग मोर साइकिल्स दैन विद 8 आवर लोड शेडिंग। तो 6-8 आवर लोड शेडिंग के मुताबिक उसको वो 15-20 साल उस बैटरी की लाइफ है, 10 साल की हम वारंटी दे रहे हैं। So overall, I think it's a very efficient solution. Efficiency is improving, reliability is improving, the solution is improving. Plus, with software integration, it's getting more optimized. और जैसा दूसरे मैंने कहा, दूसरी साइड से घर भी एनर्जी एफिशिएंट हो रहे हैं, solution efficient हो रहे हैं, घर एनर्जी एफिशिएंट हो रहे हैं, and I'm pretty sure at some point we are going to converge where नदीम के घर पे 2 इलेक्ट्रिक नईम, यस, नईम के घर पे 2 इलेक्ट्रिक, आई मे बी रेड नदीम, सो माय अपॉलॉजीज, 2 गाड़ियां खड़ी होंगी, घर का पूरा लोड चल रहा है और वो सेल्फ सफिशिएंट है घर। हाँ, अच्छा मुझे ये बताएं, we'll get there someday इंशाल्लाह। मुझे ये बताएं कि व्हाट एग्जैक्टली, ये तो समझ में आ गया कि स्काई इलेक्ट्रिक इन योर कंपनी इज प्रोवाइडिंग लाइक सोलर सॉल्यूशंस, राइट? बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि आप इनोवेट कहाँ पे कर रहे हैं, इनोवेशन किस तरह से हो रही है व्हेन यू आर नॉट द मैन्युफैक्चरर। लाइक जिस तरह आपने कहा, आई एम श्योर चाइना इस वक्त लीड कर रहा है इस सारे फिनोमिनॉन को जो सोलर एनर्जी का है, राइट? तो चाइना में हाउ यू आर वर्किंग विद दीज मैन्युफैक्चरर्स, how you are making sure that your solutions are cutting edge, top notch, and you have AI integrated and you have R&D done, and I'm just trying to understand कि आपका R&D डिपार्टमेंट कहाँ पे, जहाँ पे यहाँ सारा कुछ हो रहा है, बिकॉज राइट नाउ लेफ्ट राइट यू सी इट्स अ न्यू सोलर कंपनी, राइट, एंड दे आर पिचिंग कि हमारा सिस्टम सबसे बेस्ट है। एक तो ये कि आपका जो सोलर सिस्टम है कंपैरेटिवली टू दीज अदर इन द मार्केट, क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपके सिस्टम में इनमें नहीं है, और आप इनोवेट किस तरह से कर रहे हैं व्हेन यू आर नॉट इन कंट्रोल, व्हेन यू आर वर्किंग विद दीज चाइनीज मैन्युफैक्चरर, राइट? आपकी खुद की प्रोडक्शन नहीं है, इट्स नॉट योर ओन फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट, यू आर रिलाइंग ऑन देम, हाउ यू आर कीपिंग up with innovation and quality issues and all kinds of to produce a best solar system. Sure. So उसपे हमने we have built a renewable energy platform which consists of millions and millions of microgrids, and those microgrids are solar systems. So solar system is just part of the overall architecture. And SkyElectric we are not offering, solar panels, solar inverters. We are offering solar solutions. Okay. And solar solution is part, one component of the overall platform. So all these, जिसको जैसे मैंने कहा solar solution is actually a microgrid. And yes. They are connected virtually through internet to become a virtual grid. और हम इसके थ्रू इसकी कस्टमर केयर भी कर रहे हैं, सिस्टम की नॉक सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं, कस्टमर को ऐप भी दी है जिसके थ्रू वो मॉनिटर कर रहा है व्हाट्स वर्किंग, हाउ मच एनर्जी आई एम गेटिंग, हाउ मच सेविंग आई एम हैविंग, हाई टैरिफ रेट क्या है, लो टैरिफ रेट क्या है।
एज फार एज द इंटेलिजेंस, तो हमने इसके साथ AI/ML इंटीग्रेट किया है. मैं उसकी तरफ आता हूँ कि वो आर यू सेइंग कि बाकी मार्केट में जो सॉल्यूशंस हैं वो AI और ये सारा इंटीग्रेट नहीं करके दे रहे? नहीं, यू आर द ओनली वन इन टाउन. वी आर द ओनली कंपनी जिसने AI/ML यूज कर रहा है. मैं वो यूज कैसे भी आपको बताता हूँ. दूसरा, हमने साइबर सिक्योरिटी इज़ पार्ट ऑफ द आर्किटेक्चर. अभी जब वो नया टाइम आ रहा है, जो नई हम ये जो माइक्रो ग्रिड्स बना रहे हैं, पहले टाइम पे तो ये होता था ना, जब कुछ जंग शंग लगती थी तो आपके जो भी सेंट्रलाइज ग्रिड है, किसी डैम शैम के बम गिरा देते तो ठीक है. अभी वो साइबर अटैक्स होंगे. सो वी नीड टू मेक श्योर वट एवर द IoT बेस्ड प्लेटफॉर्म वी आर बिल्डिंग, आइदर फॉर माइक्रो ग्रिड्स और फॉर स्मार्ट होम्स और फॉर वट एवर यू कॉल इट, they are going to be secure as well and attack proof. SkyElectric का फाउंडर्स का सिंस एक्सपीरियंस था, प्रीवियस हिस्ट्री साइबर सिक्योरिटी एज वेल एज. अच्छा, हमारी जो Terraspring कंपनी थी, दैट वाज इन क्लाउड वर्चुअलाइजेशन, where you can have lot of systems virtualize किया था डिफरेंट कंप्यूटिंग को. फिर FireEye साइबर सिक्योरिटी, उन दोनों को कंबाइन करके प्लस इसके साथ हमने सोलर एनर्जी को कंबाइन करके वी बिल्ड ए प्लेटफॉर्म विच इज़ वर्चुअली स्केलेबल to millions and millions and millions of microgrids and which is very very secure platform. ये तो इसका ओवरऑल आर्किटेक्चर हो गया. अच्छा, अब मशीन लर्निंग और AI हम कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं? इस सिस्टम को आपकी लोड प्रोफाइल लर्न कर रहे हैं ML की बेसिस पे. ML मशीन लर्निंग की बेसिस पे, विच इज़ टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. और इसको ये भी पता है कि इसके पास पावर की 3 इनपुट्स आ रही हैं. एक सोलर इनपुट है, उसकी कॉस्ट का भी इसको पता है. फिर इसके पास लो टैरिफ रेट आ रहा है, उसकी कॉस्ट का भी इसको पता है. फिर इसके पास हाई टैरिफ रेट आ रहा है, उसका भी इसको पता है. फिर इसके पास आउटेजेस आ रही हैं, उसका भी इसको पता है. आउटेजेस इट ऑटो लर्न्स. आपके घर पे आज भी 1 से 2 बजे तक बिजली गई है, कल भी 1 से 2 बजे तक बिजली गई है. एक पैटर्न होता है. पैटर्न होता है. तो वो इट्स ऑटो लर्निंग, इसको पता चल गया कि 1 से 2 बजे वाली ये स्केड्यूल्ड आउटेजेस हैं, राइट. अब इसकी बेसिस पे इट विल जनरेट ए स्पेसिफिक पावर प्लान विच इज़ वेरी वेरी स्पेसिफिक, कस्टमाइज्ड फॉर यू, फॉर योर हाउस, एंड दैट इज एप्लीकेबल. सो दैट पावर प्लान इज़ वेरी यूनिक. माई हाउसेज माइट बी डिफरेंट, for other people's house it might be very different. So वो AI/ML की बेसिस पे आउटेजेस लर्न कर रहा है, लोड प्रोफाइल आपकी लर्न कर रहा है. फिर वेदर फोरकास्ट हम इसको फीड करते हैं. वेदर फोरकास्ट, सो एवरी सिस्टम इज कनेक्टेड विद द क्लाउड. अब क्लाउड से हम काफ़ी सारा डेटा सिस्टम को फीड कर रहे हैं कि आज इस लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पे जहाँ पे सिस्टम इंस्टॉल्ड है, दिस इज गोइंग टू बी द वेदर पैटर्न. वेदर पैटर्न भी इसके पास आ गया है. सो इस सारी चीज़ों से, और हमने अब ये सारा कुछ हमने सॉफ्टवेयर को फीड किया हुआ है. सॉफ्टवेयर को हमने 2 गोल दिए हैं कि जी आप 24/7 एनर्जी चाहिए, अवेलेबिलिटी, रिलायबल एनर्जी, चीपेस्ट पॉसिबल. नाउ सॉफ्टवेयर यूजिंग ऑल दीज पैरामीटर्स इज फिगरिंग इट आउट कि व्हाट इज द ऑप्टिमल प्लान फॉर योर हाउस, फॉर माई हाउस, or somebody else house. You mentioned cheapest. लोगों के जहन में आता है जब वो सोलर यूज़ करते हैं तो ऑलरेडी उनकी बिजली फ्री है, वो नेट मीटरिंग, रिवर्स मीटरिंग कर रहे हैं, वो IS को, पेस्ट को या जो भी ग्रिड है उसको दे रहे हैं. तो हाउ डज बहुत अच्छा सवाल किया आप. वेयर दिस चीपेस्ट फिट? बिजली तो ऑलरेडी फ्री है, तो फ्री में भी चीपेस्ट होता है. हाँ, बिल्कुल उसमें होता है. सो एक तो जो ऑन ग्रिड सिस्टम लगा रहे हैं ना, हाइब्रिड जो नहीं है. ऑन ग्रिड का मतलब ये होता है कि जब ग्रिड है तो चलेगी, वरना नहीं चलेगी. बिजली अगर आप है वापडा की तो सिस्टम आपका चलेगा. जिस टाइम आपकी बिजली गई, लोड शेडिंग हो गई, तो आपका सिस्टम ऑफ हो जाएगा. ना आपको आप ग्रिड को दे सकेंगे, ना अपने घर के बिल्कुल सिस्टम उठा सकेंगे, ना AC चलेगा, ना पंखा चलेगा. तो दिस इज ऑन ग्रिड. दिस इज ऑन ग्रिड सिस्टम. अच्छा, एक तो ये चीज़ है. दूसरा, जैसे ही हम वी आर डिप्लॉइंग मोर एंड मोर सोलर सिस्टम्स, the net metering rate what you are getting today is not going to be the same
the rate you will be getting from disco versus the one you are feeding to the disco are going to be different. That is already different, sir. नहीं तो अभी नहीं है. For example, अभी ऑफसेट हो रहे हैं, अभी सेम रेट मिल रहा है. अच्छा, जैसे कैलिफोर्निया जो देते हो that is same. हाँ, अभी सेम है. Okay. अभी यूनिट ऑफसेट हो रहे हैं ना. Okay. जैसे कैलिफोर्निया में ये हुआ है और हवाई में भी ये हो चुका है कि दिन को तो दे हैव स्टॉप नेट मीटरिंग. आई थिंक वहाँ पे 20 to 30% सोलर की अडॉप्शन हुई है हवाई में, और दे हैव ऑलरेडी स्टॉप्ड नेट मीटरिंग ड्यूरिंग द डे दे डोंट बाय. जो ग्रिड है वो नहीं लेता बिजली उनसे, वो कहता है मैं चाहिए ही नहीं. वो कहता है रात को दो. अच्छा. तो वहाँ पे लोगों ने ये की कि वहाँ पे लोगों ने बैटरीज इंस्टॉल कर ली हैं. सो सारी एनर्जी वो स्टोर करते हैं बैटरीज में. शाम को हाई रेट होता है उस पर वो सेल करते हैं बैक टू ग्रिड. Interesting. So we will be getting there. ये पिछले दोनों पता नहीं आपने वो कोई ये नेप्रा से एक प्रपोजल आया था, वो देखा है या नहीं, कि वो दे विल बी चेंजिंग टैरिफ रेट फॉर रिवर्स मीटरिंग. तो उस पे इस दफ़ा तो उन्होंने मेरे ख्याल में काफ़ी सारी सोलर कंपनीज ने इनको अप्रोच किया है कि वो एट ए वेरी अर्ली स्टेज ऑफ द सोलर अडॉप्शन. ऑलरेडी काफ़ी सारे इश्यूज चल रहे हैं, इंपोर्ट के चैलेंजेस हैं बिकॉज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, और प्लस ये GST आपने पहले लगा दिया, सारे सिस्टम पे लगा दिया, फिर पैनल पे रिमूव कर दिया. तो ऑलरेडी पहले चैलेंजेस हैं इंडस्ट्री को काफ़ी सारे. तो डोंट क्रिएट अनदर चैलेंज, येट अनदर चैलेंज, बट दैट्स गोइंग टू हैपन. Ultimately that's going to happen. Look, grid is buying energy at 30-40 rupees. ये जो ISCO है, ये डिफरेंट IPPs से और मुख्तलिफ जगह से. अब आपसे जितनी सोलर अडॉप्शन ज़्यादा होती जा रही है, what are they going to do with that energy? ISCO के पास आपको लगता है सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, हाँ, उनको तो कैपेसिटी पेमेंट देनी पड़ेगी, राइट? वो जब कैपेसिटी पेमेंट देनी पड़ेगी वो आपसे उसी सूरत में लेंगे इफ़ योर रेट इज़ मच 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 चीपर देन व्हाट दे आर गेटिंग. तो आपका सिस्टम क्या एंड दिस इज वेयर लॉट ऑफ अदर कंट्रीज आर गोइंग. दे आर गोइंग टू अ मॉडल कॉल्ड एनर्जी ऑक्शन which is called virtual power plants as well. How long will it take for that to happen कि वो आपसे कम रेट पे लें? Because right now what is the adoption of solar? It's a matter of time. पाकिस्तान में अगर मैं आपसे पूछूं कितनी % adoption हो चुकी है सोलर की इस वक्त? To be honest, I do not have the exact percentage, but overall energy mix, if you ask me, is less than 5%. Energy mix wise, less than 5%. Energy mix. एनर्जी मिक्स ये है कि आप फॉसिल फ्यूल से कितनी जनरेट कर रहे हैं, सोलर से कितनी जनरेट कर रहे हैं, यस, हाइड्रो कितनी जनरेट कर रहे हैं, विंड कितनी है. 5% of that whole spectrum is like solar, you say? Yes, wild guess. I have not studied it lately. पहले तो 1-2 साल पहले तो यार ये less than 1% था. मेरा ख्याल है कि अभी हो सकती है. अब मेरे ख्याल में एडॉप्शन थोड़ी तेज हो रही है, लोगों को इसकी अफादियत का, इसकी इम्पोर्टेंस का रेट बहुत ग्रिड का रेट ऊपर चला गया है और चीज़ें बहुत महंगी हो गई हैं. यूनिट आपको बड़ा महंगा पड़ रहा है. यार वो रेट पे आए. एक चीज़ आई वुड आल्सो लाइक टू क्लैरिफाई कि अभी सोलर का जो पे बैक पीरियड है ना विद करंट टैरिफ रेट एंड ऑल दैट, 3-3.25 साल का पे बैक पीरियड है सोलर का. मतलब आपने अगर जितने का भी लगाया है तो यू विल गेट दैट मनी बैक लिटरली. आज के रेट पे ही फर्ज की अज्यूम करें, अगर रेट और बढ़ता जाता है तो मे बी योर पे बैक विल गेट बेटर. There is like no see of slowing down of the tariff anyways because और वो जो आपने ऑन ग्रिड सिस्टम की, वापस बैक टू ऑन ग्रिड थिंग, ऑन ग्रिड सिस्टम जब ग्रिड नहीं होती तो वो नहीं चलते. अब स्काई इलेक्ट्रिक बगैर बैटरी के भी एक हाइब्रिड सिस्टम लेके आए हैं. बैटरी इज ऑप्शनल, वो अगर आप लगा लें, ग्रिड नहीं है तो फिर भी आपका जो घर पे लोड चल रहा है, अज्यूमिंग सोलर इज अवेलेबल ड्यूरिंग द डे, वो उस लोड को सप्लाई करता रहेगा. और जो एडिशनल सरप्लस वो प्रोड्यूस कर रहा था, जो कि ग्रिड को दे रहा था, वो वेस्ट हो रहा है. वो सिर्फ वो वेस्ट होगा एज कम्पेयर टू ऑन ग्रिड. तो बिल्कुल बंद हो, ग्रिड गई, वो ऑफ हो गया. ग्रिड ऑफ, ऑन ग्रिड इज ऑफ. जो हम सोल्यूशन लेके आए, इसके साथ बैटरी बेशक ना लगाएं, अगर ग्रिड नहीं है तो यू विल नॉट बी एबल टू सेल एक्सेस एनर्जी बैक टू द ग्रिड, बट जितना आपका लोड चल रहा है उसको आप सपोर्ट कर देंगे ड्यूरिंग द डे, अज्यूमिंग इट्स सनी एंड सन इज अवेलेबल. इज इट समथिंग स्पेसिफिक टू योर स्काई इलेक्ट्रिक ओनली कि आप सिर्फ कर रहे हो, या आर देयर अदर कंपनीज इन द सोलर स्पेस हु आर डूइंग दैट एज वेल? अभी तक तो हम ही कर रहे हैं, बट आई एम श्योर लॉट ऑफ, अभी पाकिस्तान में जितनी भी कंपनीज हैं 90% दे आर बिल्ड बाय एक्स स्काई इलेक्ट्रिक
people one way or the जो residential में फॉर चल रहे हैं। एग्जाम्पल यस दैट इज़ अ वेरी बिग चैलेंज कि अगर आपका ऑन ग्रिड सिस्टम में बिजली जाती है, आपके सारे इक्विपमेंट ऑफ हो जाता है, देन यू हैव टू गो टूवर्ड्स लाइक ईदर लाइक यू हैव टू डिप्लॉय बैटरीज या जनरेटर। अगर किसी और कंपनी किसी दूसरे कंपनी का सिस्टम लगाया हो एंड दे वांट दिस पर्टिकुलर फीचर ऑफ योर्स के यार जब बिजली जाए तो हमें बैटरी इंस्टॉल ना करनी पड़े, बट हमारे जो जनरेशन हो रही है सही हमें मिलती रहे, सही है, और ग्रिड को ना मिले, वो ज़ाया हो जाए। कैन यू इंटीग्रेट your system in there कि वो सारा कुछ काम करें, and how cost effective that solution would be to like improvise that? नहीं, वो आपको पूरा इंडोर उसका इन्वर्टर चेंज करना पड़ेगा। So just the inverter. And how much does it cost for like a 10 kilowatt system or 20 kilowatt I system? think 4-5-6 लाख का इन्वर्टर यहाँ पे भी somewhere around that. I don't have the exact cost. उसमें थोड़ी सी इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी आती है, बिकॉज उस केस में आप अपने लोड की वायरिंग करते हैं, क्रिटिकल लोड विच यू वांट टू रन ऑन सोलर व्हेन द ग्रिड इज नॉट देयर। अच्छा, वन क्वेश्चन दैट शायद हम बातों में आपके सेंस से निकल गया, व्हेन आई वाज आस्किंग यू कि यार आपकी तो मैन्युफैक्चरिंग है नहीं, आपने जेवी किया हुआ है चाइना में, आप इनोवेट किस तरह करते हैं, R&D एग्जैक्टली कहाँ पे हो रही है, और जिस कंपनी से आप बनवा रहे हैं तो हाउ यू आर मेकिंग श्योर कि जो सोल्यूशन टॉप ऑफ द लाइन है वही बन रहे हैं, हाउ डज दैट वर्क? सो वो मैं उसी तरफ ही वापस आ रहा था। बेसिकली वी आर बिल्डिंग ए सोल्यूशन जिसमें पैनल्स में हमारी कोई इनोवेशन नहीं है। इन्वर्टर के साथ वी हैव इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर टू मेक इट एन इंटेलिजेंट इन्वर्टर। कब चार्ज करना है ग्रिड से, ग्रिड का रेट क्या है, और वो सारी इन्फॉर्मेशन इसको क्लाउड से जा रही हैं। आज क्लाउडी है या नहीं है, वो भी इन्फॉर्मेशन इसको क्लाउड से जा रही हैं। ड्यूरिंग पीक आवर्स जब यूनिट रेट आजकल पता नहीं 36 या 40 रुपीज़, उस वक्त ग्रिड यूज़ नहीं करनी और बैटरी से घर को चलाना है, लोड को चलाना है। दैट वे यू आर सेविंग फ्रॉम पीक रेट एज वेल। सिमिलरली इसमें मैं आपको एक और बड़ी सिंपल एग्जांपल देता हूँ। अब जो स्केड्यूल्ड आउटेजेस है, लेट से 1 से 2 बजे के दरमियान दिन को बिजली जानी है, हमारा सिस्टम हैज़ लर्न दैट। अब इसको पता है कि इस वक्त आई विल नॉट बी एबल टू रिवर्स फीड टू द ग्रिड, ठीक है, तो मुझे जितना भी सोलर है मुझे बैटरी में सेव करना पड़ेगा। तो ये उससे पहले ये बैटरी में जगह बना लेगा और बैटरी से वापस ग्रिड को। सो 1 बजे से पहले जो सोलर आपका अवेलेबल है वो तो ग्रिड को जा ही रहा है, ये बैटरी से निकाल के भी ग्रिड को दे रहा है। सोलर का 5 यूनिट गया, बैटरी में अगर आपके 5 यूनिट पड़े हैं तो ये 10 यूनिट बैटरी को ग्रिड को चले गए। अब बैटरी में स्पेस बन गई। जैसे ही 1 बजे बिजली गई है तो इट्स गोल इज़ नॉट टू वेस्ट एनी सोलर इफ़ पॉसिबल। सो अब देयर इज नो ग्रिड, no reverse metering. Now it will provide to your load and it will charge the battery. और आप to minimize the wastage of the solar. To minimize the wastage, और फिर वो उस टाइम में दे जबकि रेट हाई हो. Yes. You sell it. That's another feature. That's another feature that you have developed through AI. Exactly. These are just few examples of how this our SkyElectric smart system works. These are just very few examples. So that's what makes us different from the rest of the companies, not only in Pakistan but across the world also. We have studied product in Japan as well. Nobody so far has built such an intelligent, smart, cybersecurity-wise secure and scalable system and architecture where customer has the visibility, where we are able to monitor each and every system, where if there is a fault occur, the system tells there is a fault, automatically we call the customer. It's again, after sales is part of the architecture, cybersecurity is part of the architecture, machine learning for better energy management plan is also part of the architecture. So you're doing something like Apple company. Exactly. Yes. जिस तरह वो सॉफ्टवेयर और सिक्योरिटी और फीचर्स वो खुद बनाते हैं. They let the product being manufactured in a Foxconn company. जिस तरह आपकी भी एक exactly. R&D आप तकरीबन खुद कर रहे हैं. They also help on the hardware side. We give our design like इस बैटरी के केस में we work with TDK in getting their battery. हमारी requirements हैं कि बैटरी so हमारी रिक्वायरमेंट है कि
the brand needs to be tier 1. We don't work with tier 2 things. ये इसीलिए हम कोई अक्सर लोग पूछते हैं कि यार आप मार्केट से महंगे क्यों हैं? हाँ, this is one of the very frequently asked question कि यार आपके solution बड़े महंगे होते हैं. Right. We only work with tier 1 brands. हम इन्वर्टर अगर ले रहे हैं तो हम टीयर 1 ब्रांड से लेंगे. उसकी प्रॉपर टेस्टिंग, हमारे पास लैब है, उसकी हम प्रॉपर टेस्टिंग करते हैं. उसको वी almost about kill the product to test it, to make sure it's going to be, because look, if I'm giving you an inverter जिसको मैंने 10 साल के लिए ओन करना है, 10 साल की वारंटी देनी है, I want to make sure that the company behind this inverter, first the product is going to live to its standards, and God forbid if something happens, the company behind it is going to fulfill its warranty requirements. So उसके लिए टीयर 1 पैनल के पास भी हम पैनल लेते हैं तो टीयर 1 पैनल देते हैं. सेम गोज फॉर केबल्स, AC केबल्स, DC केबल्स. It's a power plant. We need to make sure it's very safe and secure for you and your family. So we go with tier 1 top of the line A grade power cable. Then when we design the rooftop solar system, ठीक है, उसमें हम स्ट्रक्चर को वेरीफाई करते हैं डिफरेंट विंड स्पीड पे. जो अब हम जो लेटेस्ट जो स्ट्रक्चर लगा रहे हैं वो एल्यूमिनियम बेस्ड स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर लगा रहे हैं. वो it's fully tested at 120-130 किलोमीटर पर आवर विंड स्पीड पे. और इट्स आल्सो अब पैनल ऊपर लगा रहे हैं 25 ईयर वारंटी वाले, नीचे अगर स्ट्रक्चर लगा दें जो 1.5 साल में ही उड़ जाए या रस्ट जंग लग जाए, बट हम एल्यूमिनियम बेस्ड लगा रहे हैं. एक सवाल जो मेरे भी जहन में है, व्हेन यू इंस्टॉल दीज सोलर पैनल्स राइट ऑन द रूफ्स ऑफ द हाउसेस, तो उसमें आप नीचे वाली स्पेस यूज कर सकते हो, बिकॉज लोगों को के जहन में ये होगा कि यार आपकी तो पूरी जो छत है वो इससे सोलर पैनल से घिर गई होगी, और आप समझ लें कि अगर आपको ऊपर जाना है, आपको कोई बारबेक्यू करना है, तो दैट स्पेस इज नो लॉन्गर अवेलेबल. तो उसमें आप कुछ ऑप्टिमाइज कर देते हैं कि यू हैव स्टिल द ग्राउंड अवेलेबल, और सिस्टम उसमें लोग एलिवेटेड स्ट्रक्चर लगवाते हैं. हम भी एलिवेटेड स्ट्रक्चर लगा रहे हैं. आई वांट टू बी ऑनेस्ट, आई वुड नॉट सजेस्ट उस जो एलिवेटेड स्ट्रक्चर लगा है उसके नीचे आप इट्स इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, राइट. ऑल्दो अगर आपके पास स्पेस है भी, बट इट्स नॉट रिकमेंडेड कि आप उसके नीचे की स्पेस किसी भी ऐसी एक्टिविटीज के लिए यूज करें जिसमें कोयला जल रहा है, आग जल रही है, बिकॉज़ एंड फॉर दैट मैटर गॉड फॉरबिड कोई खुदा ना खास्ता पुअर वर्कमैनशिप से कोई केबल, DC केबल उतर जाती है, समथिंग हैपेंस, आई डोंट नो, इट्स जस्ट बेटर टू बी सेफ. It's still electrical equipment, right? So I would not suggest that. Last time I heard that you have so many orders of the solar systems, but then आपके पास availability नहीं है, then you cancelled all the installations and आप थोड़ा सा पीछे हटे. So just trying to understand the trajectory of the company or your vision for 2023 and 2024, because recently कुछ ऐसे incidents हुए जिसकी वजह से कंपनी का brand थोड़ा dilute हुआ. लोगों को लगा कि यार you are not delivering on your promises because आपने order बहुत ज़्यादा book कर लिए when you don't have the stock. Vendor issues आ गए, फिर कोविड बीच में हिट हुआ. तो राइट नाउ फिर आपने बताया कि कुछ डाउन साइजिंग करी आपने, बिकॉज देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल हु वर हायर्ड, और आपको लगा कि यार इतने लोगों की ज़रूरत नहीं थी. सो हाउ इन अ कंपनी इन अ कल्चर लाइक पाकिस्तान, जो आपके अपने चैलेंजेस हैं जो कि हुए, जो भी हुआ, यू आर नाउ गेटिंग बैक ऑन ट्रैक. आई एम श्योर you will be delivering on your promises as well to the customers, और customer का वापस आपके ऊपर एक एतमाद, एक ट्रस्ट वापस बिल्ड होता गया. So in a country like Pakistan, if I were to ask you a general question के जो corporates होती हैं, जो firms होती हैं, जो challenges उनको face करने पड़ते हैं, being like the founding member, the founder is out of the country because he has a lot of other companies to take care of, a lot of other commitments as well. So what kind of challenges you normally face and how you tackle that, because आपने इस कंपनी के साथ डे नंबर 1 से काम किया, फिर कुछ आप अपने पर्सनल रीजंस की वजह से 1 साल 2 के लिए आपने समझ लें कि क्विट कर दिया या आप छुट्टी पे चले गए. then you came back, when you came back to the country and to the company, it was not the same. So tell me about some of like the challenges and how you cater that, and what's like the trajectory, how you see the projection and your vision for the company going ahead forward.
बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, और इसको आई थिंक मैं अपने कस्टमर्स के लिए भी, अगर जो भी सुन रहे हैं उनके लिए भी क्लैरिफाई करना चाहूँगा। 2020 मार्च कोविड के और उस वक्त हम प्रोडक्ट सेल कर रहे थे और सेल ऑर्डर कस्टमर से लेते थे, कस्टमर से ऑर्डर लेके हमारी मैन्युफैक्चरिंग सारी की सारी चाइना में थी। हम अपनी उधर मैन्युफैक्चरिंग वालों को ऑर्डर देते कि इतने सिस्टम मंथ के बना दें। जब कोविड हिट किया तो पूरी सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई, उसमें डिस्टर्बेंस आया, कहीं पे आपको कोई पार्ट नहीं मिल रहा है, कहीं पे कोई पार्ट नहीं मिल रहा है। अब फॉर एग्जांपल कोई सेंसर अगर आपको नहीं मिल रहा है, इवन दो यू हैव द बैटरी एंड सेल्स एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल टू यू, यू कांट स्टिल बिल्ड द प्रोडक्ट। सो सप्लाई चेन के चैलेंजेस की वजह से ड्यू टू कोविड कभी और सबसे ज़्यादा लॉकडाउन आपको पता है चाइना में रहा है, राइट। तो उस वजह से हमें सप्लाई चेन के बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आए। उस वजह से हमारे ऑर्डर तकरीबन को 2000 के करीब डिले हुए। वो 2000 ऑर्डर ऐसे थे जो हमने सेल कर दिए थे सिस्टम कस्टमर को, बट वी वर नॉट एबल टू फुलफिल ड्यू टू सप्लाई चेन challenges, and there were some few little bit. As a result, there were some internal challenges also. When there's a lot of pressure, you're selling, you have sold the system, you are not able to install, there's internal demotivation, some politics, this and that. But those were the side effects. The fundamental root cause was the shortage of systems due to supply chain challenges, and that due to COVID. So, and during that time I came back and we have our board discussion, then we had our employee discussion, then I personally spoke to a lot of customers, and I found customers, agar aap unko if you tell them the truth, they are very very accommodating, very very accommodating. I had a lot of one-on-ones with customers, जो भी customers बहुत गर्म हो के आया है मैं आज मुझे 6 महीने हो गए। अच्छा, उसके बाद एक और चैलेंज ये आ गया, सिस्टम की शॉर्टेज है, सामान आ नहीं रहा, ऊपर से गवर्नमेंट ने जल्द से GST लगा दिया। अब आपको जब मैंने सिस्टम बेचा था लेट से 15 लाख रुपए का, उस पर उस वक्त तो कोई टैक्स ही नहीं था। अब 6 महीने मेरी वजह से आपका सिस्टम डिले हो गया है। अब मैं आपको कहता हूँ जी आपका सिस्टम आ गया, बट आपको इसके ऊपर 17% सेल्स टैक्स देना पड़ेगा। इट वॉज अ नाइटमेयर। सो हमने कस्टमर को कहा जी पहले जो भी डिलेज थे, ये कोविड वॉज द रीज़न। इसमें हमारा कोई इट वॉज नॉट आवर अनएथिकलनेस और गॉड फॉरबिड कोई हमारी बुरी नीयत इसमें नहीं थी, बट दिस इज हैपन, राइट। अब हमारे पास 2 सिचुएशन है। अब या तो ये आपके पैसे हमारे पास अमानत है, यू टेक इट बैक इफ़ यू आर नॉट हैप्पी, और हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, अपोलोजाइज करते हैं। या उस वक्त तक अच्छा इन्फ्लेशन भी किक हो चुकी थी, जब वो 6 महीनों में अब पाकिस्तान के हालात तो आपको पता ना, आज इज़ वेरी चैलेंजिंग। डॉलर उस वक्त लेट से 120 का था, बाई द टाइम वो सामान आना शुरू हुआ है तो डॉलर 180 पे चला गया। सो डॉलर डज, GST डज। अब कस्टमर को हम कहते हैं कि जी आप जो डॉलर की वजह से, इट्स इम्पोर्टेड इक्विपमेंट एट द एंड ऑफ द डे, और हमारे कॉन्ट्रैक्ट में ये क्लॉज भी थी। खैर हमने कस्टमर्स को एक्सप्लेन किया, सम कस्टमर ऑप्टेड टू टेक द मनी बैक। एक चीज़ जो मैंने आई रियलाइज, एंड अगेन आई वुड रिपीट दैट, अगर आप ऑनेस्टली ईमानदारी से यार यू आर ट्रूथफुल टू द कस्टमर्स, they always find ways to help you. And I think that was a great learning. I think 90% कस्टमर ने हमारे साथ बड़ा अच्छा कोऑपरेट किया। उन्होंने कहा जी वी विल वर्क विद यू टू फाइंड ए सोल्यूशन। तो कहीं पे हमने वी स्प्लिट द जो भी डिफरेंस था, कहीं पे हमने उनको पैसे वापस दिए, साथ अपोलोजाइज किया। बट अल्हम्दुलिल्लाह एज ऑफ नाउ देयर इज नो बैकलॉग। अच्छा, उस चीज़ से हमने अब 23-24 का आपने क्वेश्चन पूछा है, सो उस चीज़ से वन थिंग आई लर्न टू वर्क ए कंट्री लाइक पाकिस्तान, जहाँ पे आपको डॉलर और PKR वैल्यू का यू कैन नॉट प्रिडिक्ट यार। फिर ये टैक्सेस, ये ड्यूटीज, ये सारा कुछ, इसको आप कुछ यू कैन नॉट प्रोडिक्ट अबाउट दीज थिंग्स एज वेल।
So one fundamental change I made was we are only going to sell if we have stock in hand. ये stock in hand वाला model we introduce. और अभी हमारे पास आज आप ऑर्डर करते हैं, हमारा सेल्स का बंदा आपको बेचेगा ही उसी सूरत में, पहले वो स्टॉक चेक करता है, फिर कहेगा जी मेरे पास स्टॉक पड़ा है मैं आपको भेज देता हूँ, एंड अज्यूमिंग यू आर अवेलेबल, नेक्स्ट डे आपका काम शुरू हो जाएगा. There's no wait. अच्छा, because previously there was a lead time, right? कि 5-6 महीने आपको इंतजार करना पड़ता था because वो import हो रहा है, then there is like such a वो हमारा मॉडल था सेल करके, इट्स अ कस्टमाइज्ड सिस्टम. उसकी हमने ऑर्डरिंग की, वहाँ पे पार्ट्स का इशू हो गया, इट टुक 90 डे का जनरली वेट टाइम था. कोविड ने आके उसको उसमें अनसर्टेनिटी क्रिएट कर दी. और ये जो अब जीरो वेट टाइम जो कह रहे हैं अभी हम पहले सिस्टम लेके आते हैं काफ़ी सारे, हमारे पास 200-400 सिस्टम, 1000 सिस्टम, 500 सिस्टम, 100 डिपेंडिंग, जो भी हमारी एक फोरकास्टिंग है. उस फोरकास्टिंग की बेसिस पे हमारे पास सिस्टम पड़े होते हैं. एंड इफ द सिस्टम फॉर वट एवर रीजन इज डिलेड, हमारे पास स्टॉक में नहीं है, वी विल नॉट सेल दैट सिस्टम, वी ओनली सेल इफ इट्स देयर इन द स्टॉक. तो जो 90 डेज का वेट टाइम था वो खत्म हो गया. अभी तो देयर इज नो वेट. आप आज ऑर्डर करें, शाम को इफ़ यू वांट, थोड़ी देर में आपके पास सिस्टम डिलीवर हो जाएगा इंशाल्लाह. वेल थैंक यू वेरी मच सुखेरा साहब, अमीन सुखेरा साहब, आपके साथ गपशप लगा के बड़ा मज़ा आया. फॉर दोज हु वांट एक्सप्लोर मोर अबाउट SkyElectric, वेयर दे कैन फाइंड यू, SkyElectric कंपनी, लाइक कुछ फेसबुक पेज, कोई वेबसाइट, टेल अस अबाउट दैट. Like any like social media SkyElectric has, like if somebody wants to get more information about SkyElectric, where they can get it from. So हम basically Facebook पे भी हैं, LinkedIn पे भी हैं, Twitter पे भी हैं. We advertise and we send some knowledge posts as well, publish on Facebook, LinkedIn, and we are for those people who I think I have resolved 99.9% of the complaints. I have created an email address for customers. If somebody wants to escalate to me, it's the email address is ceo@skyelectric.com, and my request to customers and my message to our customers and prospects is that we are a group of very ethical people. We are here for good, inshallah, and our objective is to solve Pakistan's energy crisis and also build a world-class product for other parts of the world as well. So we are not here for a short-term thing. We are here for good, and we are here for building a next generation disco, which will consist of millions and millions of microgrids connected through internet, where we can, based on community, we can participate and fulfill each other's energy needs. That was so nice of you, Amin Sukhera साहब. Again, इनका जो customers हैं जिनको थोड़ी सी difficulty face हुई, he has tried his best to sort out the issues of the customer, but if you are one of or 2 or 3 or 10 वो customers जिनके अभी तक sort नहीं हुए, तो he has made like a dedicated email for you, ceo@skyelectric.com. This will also be in the description, plus all their socials, इनकी website, and plus during the conversation he mentioned if you're talented enough, if you're a software developer, Absolutely. if you're a techie, or if you feel like you can work for them, if you have some feedback about their system after using it, and you're a techie as well, you can also reach out to them. LinkedIn पे भी हैं, website पे भी hopefully इनका career का section होगा. So if you feel like you want to work for a great company in Pakistan who is disrupting the solar space, check out their profiles as well. And as usual sir, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई. एक वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड, हम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के साथ मिल के बूट कैंप्स भी कर रहे हैं. 6 weeks का बूट कैंप्स. द फर्स्ट वन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद नेस्ट वेरी सून, वेयर वी टेक देयर ग्रेजुएट्स, train them on different technologies what are being used inside SkyElectric, and we try to find them job as well. Inshallah. Right. All the information will be in the description. कोई feedback हो, कोई comment हो, कोई चीज़ अच्छी लगी हो, बुरी लगी हो, हमें comment section में ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ ये podcast ज़रूर शेयर कीजिएगा. और आपसे मुलाकात होती है अगले podcast में. तब तक अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.